विंदम सिटी काउंसिल में हम लोगों ने जो प्रोग्राम रखा है बिजनेस कम्युनिटी ब्रेकफास्ट के लिए, उनके लिए हम जो है कि पूरी विंदम सिटी कम्युनिटी तरफ से जो है स्वामी रामदेव जी का जो है तहे दिल से जो है पूरी तरह से उनका स्वागत करते हैं। It's a great honor to see Baba Ramdev ji in Windham City area, and especially now my portfolio is as being a businessman in the city. I personally say I'm admire and inspire Swami Ramdev's history and a life. Can I say, in my view, Swami Ramdev is just not a Swami, he's a great entrepreneur and successful billionaire of India. Apart from his yoga training, now look at I've gone on internet and did some information about him. If I can admire the person who started his career a very simple man and established an empire of 15,000 crore Indian rupees. Now, we all Indians left India for good reasons, obviously, and we miss India. But we're also proud now seeing that, one of our best Indians, the person who had the love for the country and raised a concern the black money should go to India. That demonstrates the equal rights, the fairness for every Indian. Now, read about him, what is admired, how a man established a yoga empire and the company Patanjali Ayurveda. Apart from the company which has been extremely successful in India, I believe every Indian's house you will find his product. I believe Reliance have a dream, but can I say Reliance is, been overseas and have education and all that, but is it the Baba who created, self-made, a billionaire who have got now opportunity and his product is everywhere. I'm sure Reliance is very popular man, but Baba is more popular with his product. It is not in India. It's also in Australia, UK, New Zealand. So people are using his product. The product is just not for using luxury. He's in need of health. Everybody loves, we all know that, we love dressing up, we love ourselves. Can I say when I wake up in the morning, I use a dentist, which is a manjan for the Baba, and everybody's. So it is something, we all practically using it, and that's what something as being a good human being, a creative product will serve the society, serve the community. Apart from his yoga training, a lot of people have, taken a benefit, being a spiritual leader, and that sort of person we admire. So when I heard about the Baba is coming to Australia, I was very excited. I contacted a number of people, and I would say I was great and lucky enough to contact Ashwini Bora, my good friend, and Colonel Vijay Dheer Singh ji, who came, and then obviously somehow I've established a link with the Tijaraji, and they're all excited to say that, we're gonna go and see the Indian community. Here we have Rakesh Agrawal ji, who has been listed in BRW, or top 200 rich, and he's serving a product which is a dairy product, so he has served the country. So a lot of people come from India, our good friend Sukhmeet, Param Jaswal, who have 4 or 5 colleges, Alok, Akash, and a number of other friends, those are here from business background. But one thing we common have, we admire people like you, born in India, established, worked hard, and established a branding. The branding have a faith. When people go, they will buying your haldi, they're buying your jeera, and they know that there's no milavat. We know there's no corruption. So that is something, takes a lot of encourage, takes a lot of what we call the passions to establish organization company. Well, here onwards, now we'll be asking a few more questions, have about discussion of a few things, but we're looking forward to see from your mouth. Now, can I invite now my fellow Councillor Gautam Gupta to speak about how this Windham City Council have grown, what kind of population we have, and how we're enjoying as being a multicultural South Asian community. Please be a big round of applause for Gautam Gupta. I welcome you on behalf of Windham City. We are very proud to organize and host such events. We have done many events in the past with, when Prime Minister Modi ji came and his advisors came before him, we hosted them over here. So this is in the continuation of that and our partnership with the Indian community.
which is obviously one of the fastest growing communities in the city of Windham. We have 6% of our population call themselves of Indian origin. In a city of 200,000, that makes about 12,000 people. About 7,000 of them are kids, so we have 5,000 adults who are born in India. So that's a very huge population from an Australian context. We're taking that forward. I think yoga is again a way of life for us. When we hear about yoga as an Australian of Hindu origin, yoga is a way of life for us. I can't see a life without yoga. Obviously, we can't do it. Hopefully, it will change after this visit. Hopefully, we'll have more sessions of yoga. When we're talking about land and setting up Patanjali Yoga Peeth and something like that, I would like to pitch on behalf of City of Windham that we would love to see that facility coming to Windham. And for that, you have my commitment, Babaji, and I'm just making it commitment in public, that if you do want to set up here, we will work with you to see if we can allocate 10 to 20 acres of land for you to set up there. We have many businesses over here, many very rich business people over here of Indian origin and of non-Indian origin as well. Many people have informed me, including non-Indians. So some of them, Anglo-Saxons and Australians, white Australians, who told me that they have been to India, they have been to ashrams. They would like to see that kind of facility coming into Windham, and they are willing to contribute for that. So we would like to work with you and give you an offer that if you consider setting up here, we will do that. The city is here to do that. And this will be an accentuating of furthering our interest in Indian food, Indian social and cultural practices. And by the way, we have one of the biggest cultural events in city of Victoria happening within Windham. Now we have Diwali events, we had Holi events, and many more events that are happening here. And hopefully next year we'll also have Baisakhi event. And so finally, I would like to say that International Yoga Day is very anticipated. I would like to announce here that we will be partnering, we will be doing a lot more events as in ramp up to the International Yoga Day. And I would love an offer, if you can support us, if you can lead the way, contribute, work with us, so we can make Windham the city of Victoria when it comes to yoga practices. With that, thank you all for coming and embracing Windham. Thank you. Now, finally, we'd like to invite Swami Ramdevji to say a few words about, and we're asking, we'll go for the small and quick panel about the few questions. But I'm sure some of them we all don't know. Swamiji also have a big institute in India where he just obviously selling the product, but also giving a way of life to the people. With those institute, which is a Patanjali Institute, offers just not a bachelor degree, master degree, but also the PhD. So if that is something, not many people will make money and think about how we can educate our society and the community when they leave finally, to depart from the world. So I think these things will remain, and those people who graduate, they will remember who is the man who established. So these are sort of great regions. As Gautam Gupta has said that now, the yoga has been recognized in the UN, and we would like to be part of the special program, and Yoga Day is 21st of June. And that is where, I think Swamiji was the one who was initially behind, and our Prime Minister Modi have led the way, and he will love to see, and obviously Swamiji, how we can actually internationally, and just not India, but everybody can celebrate the Yoga Day, which is 21st of June this year. Now, we'd like to invite now by asking a few questions. So before, maybe what we do now, we'll ask Swamiji to come and say a few words, and then we will go from that side. Thank you. आज अब कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ, सब कुछ तो बोल दिया इन लोगों ने। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। अब यहाँ हमारे इम्तियाज भाई ने अलग-अलग क्षेत्रों में इतना कह दिया, तो मैं थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसे मुझे ऐसे लग रहा था कि हमारा इम्तियाज जो है वो हमारा ब्रांड एम्बेसडर हो गया।
हमारे ब्रांड एम्बेसडर कोई हीरो हीरोइन, कोई क्रिकेटर, कोई एक्टर नहीं, हमारे ब्रांड एम्बेसडर इम्तियाज खान भाई जैसे और आप जैसे शुभचिंतक हमसे प्यार करते हैं। और क्योंकि इम्तियाज खान जो है इसका नाम मुसलमान है, लेकिन ये ऊपर से नीचे तक कहीं से मुसलमान दिखता नहीं है। ऐसे ही सब है हम लोग, न हिंदू है न मुसलमान है, हम सब इंसान हैं। ये बात की बातें हैं ये सब। और वैसे इंडियन मुसलमानों के बारे में मैं एक बात और कहता हूँ कि आप 200, 300, 500 साल पहले जाएंगे तो हमारे और इनके पुरखे एक ही पाएंगे, जन्मपत्र इनका बार हो जाता है। हमारे पुरखे 200, 300, 500 साल पहले एक ही है, तो हमारा ब्लड एक है, हमारे पुरखे एक है। हाँ, हमारे मजहब अलग होने से पूर्वज तो अलग नहीं हो सकते। मैंने यही स्पीच दी थी देवबंद में जाकर के, जो एशिया का सबसे बड़ा इस्लामिक सेंटर है। वहां करीब 5 लाख लोग और अकेला बाबा। तो लोगों ने सोचा क्या बोलेगा आज बाबा, क्योंकि बाबा के बोलने से बहुत बार बवाल भी हो जाता है। तो बोले आज कुछ बाबा पता नहीं क्या बोलेंगे। तो सारा पुलिस, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सब कि बाबा कुछ क्या बोल दे और पता नहीं को इंतजाम कैसे होगा, कुछ बेकाबू हो गया। तो जब मैंने बोलना स्टार्ट किया तो पिन ड्रॉप साइलेंस था। तो मैंने वहीं से शुरू किया। मैंने कहा हमारे और तुम्हारे मजहब अलग हो सकते हैं, लेकिन पूर्वज अलग नहीं हो सकते। खून हमारा और तुम्हारा एक ही है, खानदान हमारा और तुम्हारा एक है। ऐसे भी तो हमारी माँ वाले खानदान की तरफ से आते हैं। हमारी माँ भी वहीं की है जहाँ का ये है। खैर हम बाबा जी हो गए इसलिए आपको मामा जी नहीं कहेंगे। अब देखो सक्सेस का मतलब क्या होता है। मैं आपको, तुम लोग सब बिजनेसमैन हो, तुम्हें बिजनेस के टिप्स देता हूँ कुछ। आदमी सक्सेस का मतलब किसी चीज को मैं कुछ पा लेना समझ लेता है कि मैंने कुछ अर्न कर लिया, ये मेरा सक्सेस है। नहीं, मैं इसको सक्सेस नहीं मानता, और ये सक्सेस है भी नहीं। अर्न तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। आप यदि स्पिरिचुअल फील्ड में है तो मैं अपना बताता हूं, फिर आप एक कॉमर्शियल फील्ड में है तो भी उसका दूसरा पक्ष बताऊंगा। पहले अपना बताता। ज्यादातर लोग जानते हैं मेरे बारे में तो सारा भरा पड़ा है, और आप कहीं भी जाके सर्च करो वहीं बाबा मिल जाएगा। आपको योग को सर्च करना है तो बाबा मिल जाएगा, आयुर्वेद को सर्च करना है तो बाबा मिल जाएगा, पॉलिटिक्स को सर्च करना है तो बाबा मिल जाएगा, ब्लैक मनी, करप्शन, पॉलिटिकल चेंज उसको सर्च करोगे तो बाबा मिल जाएगा, और बाबा रामदेव रेसलिंग सर्च करोगे तो बाबा वहां में मिल जाएगा। कर देगा। मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट की थोड़ा सा, क्योंकि जो सर्च में मिलता है ना वो पूरा एक्चुअल नहीं होता, थोड़ा थोड़ा लिंक मिल जाता है, आपको हिंट मिल जाता है। मेरे माता पिता दोनों अनपढ़, सरकारी स्कूल में मैं पढ़ा, और वहां पर भी सरकारी स्कूलों के क्या हाल है आपको पता ही इंडिया के अंदर। फिर 6ठी क्लास तक तो पढ़ाई फ्री होती थी। 6ठी क्लास में 2 रुपए की फीस लगती थी। 6th क्लास में 2 रुपए फीस साल भर की। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये जो सिस्टम है एजुकेशन का, दिस इज नॉट राइट। ये मैकेनिक का सिस्टम है, तो मुझे इंडियन सिस्टम से पढ़ना है। तो मैंने उसी समय ठाना कि मुझे वो सिस्टम से पढ़ना है जिस सिस्टम से रामकृष्ण पढ़ते थे। मेरा बचपन का नाम रामकृष्ण था। तो मैंने कहा उस सिस्टम से पढ़ना है जिससे राम और कृष्ण चाणक्य पढ़ते थे, ऋषि मुनि पढ़ाते थे, उस इंडियन सिस्टम से पढ़ना है। तो मैंने घर छोड़ दिया 14-15 साल की उम्र में, गुरुकुल में चला गया, संन्यास ले लिया था। वो ये कपड़े बाद में लिए, संन्यास तो उसी दिन ले लिया था 15-16 साल की उम्र में, कि मुझे ऋषियों के रास्ते पर चलना है। अब मैं चल पड़ा घर से। मुझे ये नहीं पता था मुझे जाना कहाँ है, गुरु कहाँ होगा, गुरुकुल कहाँ होगा, क्या होगा। ना मंजिल का पता था ना रास्ते का पता था, बस एक मन में संकल्प था। तो मेरे यहाँ तक पहुँचने में मेरी जिंदगी के जो 2 बड़े सूत्र थे, 2 मंत्र थे,
मेरे सक्सेस के 2 सीक्रेट थे, वो ये थे कि मैंने सोचा कि मुझे जो करना है वो करना है, चाहे सारी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी हो जाए, मैं यदि सच्चाई के रास्ते पर चल रहा हूं तो मुझे कोई उससे रोक नहीं सकता। तो संकल्प में मैंने कभी विकल्प नहीं आने दिया। दिस इज फर्स्ट थिंग। दूसरा, सोचते तो बहुत है, सपने तो बहुत बड़े बड़े लेते हैं सभी, फिर बड़े बन क्यों नहीं पाते? मेहनत नहीं करते लोग। और मेहनत खाली एक तरह से नहीं होती है, शरीर से, बुद्धि से, वाणी से, विचार से, फिर सारे अस्तित्व से, आप सब तरह से अपने आप को झोंक दो ना उसमें, तो आप नंबर 1 हो सकते हो। ये मैं स्पिरिचुअली भी कह रहा हूं, सोशली भी कह रहा हूं, पॉलिटिकली भी कह रहा हूं। ये हमारे गौतम जी के लिए भी है, इंताज के लिए भी है, आप लोगों के लिए भी है। पॉलिटिकली बोले, सोशली बोले, इकोनॉमिकली बोले, सब जगह अपने आप को उसमें पूरा झोंक दो, कोई किसी भी पहलू से उसमें कसर नहीं छोड़ो। जैसे मैं अपना कहता हूं, मैं शरीर से 18 to 20 आवर्स मेरी वर्किंग आवर्स है, 18 to 20, 18 से 20 घंटे मैं काम करता हूं और मस्ती से करता हूं, नो स्ट्रेस, नो एंगर, नो रिएक्शन। 3 चीजें बड़ी खतरनाक हैं, रिएक्शन, रॉन्ग एक्शन एंड इनएक्शन। 3 से बचो। रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, इनएक्शन नहीं, बस अपना काम करते जाओ। फिर क्या होगा? मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, योग में हम लोग नंबर 1 हैं पूरी दुनिया के अंदर, आयुर्वेद में हम नंबर 1 हैं पूरी दुनिया के अंदर, हमने फूड पार्क पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट है, माने नेचुरल प्रोडक्ट्स पर बेस्ड वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड पार्क हमने बनाया। योग में नंबर 1, आयुर्वेद में नंबर 1, नेचुरोपैथ में नंबर 1 और वैदिक एजुकेशन इसमें नंबर 1। स्वदेशी का काम हमने शुरू किया, उसमें नंबर 1। और जब हमने एंटी करप्शन और ब्लैक मनी के खिलाफ एजिटेशन शुरू किया तो आंदोलन में भी नंबर 1। अब हमको तो ये पता ही नहीं था ये नंबर 1 होता क्या है। मैं तो कई बार सच में बताता हूँ, लोग मुझसे शुरू में इंटरव्यू लेते थे, आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। वैसे लोग बोलते थे, बाबा आप यू आर वेरी पॉपुलर, यू आर ए ब्रांड, यू आर ए सेलिब्रिटी, यू आर ए आइकॉन, आपके बहुत फॉलोवर्स हैं। मुझे ये नहीं पता था ये फॉलोवर्स क्या होते हैं। वैसे लोग बोलते थे आपके बहुत फैन हैं, हम सोचते थे फैन तो ऊपर छत पे टंगता है, ये फैन ये नीचे घूमने वाले कैसे होते हैं। खैर मैं आपको बात कर रहा हूँ, आप आगे कैसे बढ़ते हैं। आपको किसी को देखने की जरूरत नहीं है। हमने कभी भी ये नहीं माना कि हमारा कोई कम्पिटिटर है, हमने कभी देखा ही नहीं किसी के बारे में। हमने कभी किसी की नकल नहीं की कि वो ये कर रहा है तो हमको ये करना है। तो हमने क्या किया कि अपनी पूरी ताकत लगा दी। तो अपना शरीर लगाया, अपना दिमाग लगाया। मैं सोता हूं तो फिर कुछ नहीं, बस सो जाता हूं। मुझसे लोग बोलते बाबा जी इतना तेज दिमाग चलता है, सब सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, स्पिरिचुअली, हर तरह से इतना चारों तरफ आपका दिमाग घूमता है, रात को सोते कैसे हो? मैंने कहा कैसे? बोले आप ये विचार को रोकते कैसे हो? मैंने कहा कुछ नहीं करते, रात को सोते, बस अब सोना है तो सो जाते हैं, काम करना है तो काम करते हैं, जब जो करना उसमें लगते। माने 4-5 घंटे सोने के अलावा फिर फिजिकली अपने आप को पूरी तरह से इन्वॉल्व किया, मेंटली अपने आप को पूरी तरह से इन्वॉल्व किया। जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं उसमें सबसे बेस्ट क्या हो सकता है। देखो आपको दुनिया में यदि अपनी चीजों को स्थापित करना है तो सबसे पहले आपको मार्केटिंग आनी चाहिए। आई एम नॉट ए मार्केटिंग गुरु, मैंने को मैनेजमेंट नहीं किया हुआ है, लेकिन मैनेजमेंट करने वालों को मैं पढ़ा सकता हूं। तो बिजनेस मैनेजमेंट नहीं किया, मार्केटिंग में मैंने कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं किया है, लेकिन मैंने कहा कि ये लोग जो है जब गली सड़ी चीजों को बेच देते हैं। अब आदमी क्या बेच रहा है? आदमी जो है जो जितने भी बॉलीवुड और हॉलीवुड जिनको सुपरस्टार्स कहते हैं, ये सब किसको बेच रहे हैं? ये सब लोग शरीर को बेच रहे हैं।
अब क्या बेच रहे हैं? तू ऐसी दिखती है, तू ऐसा दिखता है। अरे जैसा दिखता है सामने खड़ा है ना, इसके पीछे क्या दिखता है? इसके पीछे जाकर के देख ले, हार्ड मांस है, और पीछे जाकर देख ले, लैट्रिन भरी पड़ी है, पेशाब भरा पड़ा है, इसको बेच रहे। जब आदमी इन सब चीजों को बेच सकता है तो ग्लैमर चाहिए चीज के अंदर। तो हमने योग को लोगों ने रूखा सूखा बना दिया था, हमने योग के अंदर वो ग्लैमर पैदा कर दिया। आज सुपर स्टार्स भी योग करते हुए मिलेंगे। अमिका आपको क्या चाहिए? चलो, आपको अच्छे बाल चाहिए ना, ये आपको अच्छे बाल चाहिए तो आप योग करो, आपको अच्छे गाल चाहिए तो आप योग करो, अच्छे दांत चाहिए तो आपको योग करो, आंखों में नूर चाहिए तो योग करो, दिल में प्यार चाहिए तो योग करो, शरीर में शक्ति चाहिए तो योग करो, दिमाग में ज्ञान चाहिए तो योग करो, और आपको सक्सेस चाहिए तो भी योग करो। और उसके लिए हमने पूरा उसका पैकेज दिया कि ये करो, बिल्कुल सिंपल है। अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो योग करो, क्रिएटिविटी बढ़ानी है तो योग करो, आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना है तो योग करो, आपको बीमारियों से मुक्ति पानी है तो योग करो। और खाली उसको कहा नहीं, उसको किया। देखो बाबा लोग क्या करते हैं, बाबा बैठ जाते हैं, चेले करते रहते हैं। हमने खुद किया, मैं बोलता भी हूं, मैं करता भी हूं। इस बात नहीं करेंगे, आपको खुद करना पड़ेगा और उसके रिजल्ट देने पड़ेंगे। मैं कहता हूं कि मैं मोटे को पतला करता हूं तो एक दिन में ही, आप में से कोई भी ट्राई कर सकता है, एक दिन में 1 से 2 किलो वजन झाड़ देता हूं सीधे। मोटे भाई एक दिन में 1 किलो से 2 किलो वजन कम करता हूं, वहीं मैं कांटा रखता हूं। जब मैं योग शिविर कराता हूं रेसिडेंशियल, उस समय जब 50,000 लाख लोग होते हैं तो कहता हूं अपने घर कर लेना। बाकी जब मैं रेसिडेंशियल कराता हूं तो वही वेट कराता हूं सबका डेली, और हर दिन 1 से 2 किलो वजन कम करता हूं। एक ही दिन में बीपी की गोलियां बंद कराता हूं, एक ही दिन में थायराइड की गोलियां बंद करा देता हूं, एक ही दिन में उसको नींद की गोलियां बंद करा देता हूं, डिप्रेशन की गोलियां बंद करा देता हूं, कोलेस्ट्रॉल की गोलियां बंद करा देता हूं। मैं करो योग और अपना सारे के सारे मेडिकल चेकअप कराता हूं। पूरा का पूरा हमने सिस्टम रखा हुआ है। हमारे पास 10,000 लोगों के लिए ओपीडी की व्यवस्था है, उसमें 10,000 लोगों का हम डेली टेस्टिंग कर सकते हैं। 10,000 लोगों के लिए एकोमोडेशन हमारे पास में, और 50,000 लोगों के लिए शायद दुनिया का सबसे बड़ा हॉल बना रखा हमने बैठने के लिए। करो योग, सब लगा रखा लाइन में लगो। माने उसके अंदर हम एक चीज से नहीं बनेगी बात, खाली फिजिकल वर्क से नहीं, खाली मेंटल वर्क से नहीं, फिर खाली प्लानिंग से नहीं, खाली मार्केटिंग से नहीं, आपको सारी चीजों को जोड़ना पड़ेगा। फिर क्या चाहिए था? अब इसके लिए मीडिया चाहिए। तो जो है आस्था चैनल, अब इसकी भी इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। देखो मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, आपको मैंने प्रयास कैसे करने पड़ेंगे। आज बोलते हैं सब कम्युनिकेशन का युग है, तो कम्युनिकेशन में आपको वीक नहीं होना। आज मेरा कोई अकाउंट नहीं है, लेकिन मेरा फेसबुक का अकाउंट है, मेरा ट्विटर का अकाउंट है, और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कोई स्पिरिचुअल आदमी का सबसे बड़ा किसी में मास फॉलोइंग है तो बाबा रामदेव का। फेसबुक पर भी, ट्विटर पर भी। आपको किसी भी गुरु का 5-10 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा, मेरे 50 लाख से ज्यादा है। इस साल 1 करोड़ हो जाएंगे। क्यों? ये यूज करो ना, सोशल मीडिया यूज करो, फिर दूसरे मीडिया यूज करो, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब दूसरे बच गए, न्यूज चैनल्स। तो हमने उनको भी जहां भी कैंप किया वहीं उनको भी प्रमोट किया। अब लाख आदमी आ रहे हैं, मैं अखबार का नाम बोलूंगा तो वो अगले दिन मेरी छापेगा ना खबर। तो मैं लाख लोगों में उनको प्रमोट करता था, वो मुझे प्रमोट करते थे। मैंने कहा जिसको करना हो करो, जिसको नहीं करना मत करो। तो हमने उनको, और हमें कुछ उनसे और कुछ तो चाहिए था नहीं। हमने कहा कि योग की बात जो करेगा, तो हम लाख आदमी में उनका नाम लेते थे, वो हमारे बारे में 2-2 पेज वो छापते थे। फिर इधर से अब न्यूज चैनल वाला जब मेरा इंटरव्यू लेता है तो आज तक का रिकॉर्ड है, जितने भी इंडिया के टॉप मोस्ट बिग इंटरव्यू हैं उनमें सबसे ज्यादा, किसी में 5 बार, किसी में 10 बार, किसी में 15 बार बाबा रामदेव को बुलाते हैं, और उनकी टीआरपी सबसे हाई होती है। तो आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए कि आप जो है जिस भी मुद्दे पर बात करें तो उससे आगे कुछ बचे नहीं करने के लिए। दिमाग तो लगाना पड़ेगा, शरीर से भी मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग से भी मेहनत करनी पड़ेगी, प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, मीडिया को भी साथ में लेना पड़ेगा, समाज को भी साथ में लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, यदि आप बहुत बड़ा काम करना चाहते हो तो आपको फिर अपने से ऊपर उठना पड़ेगा। मैं और मेरा नहीं, अब सबके हो जाओ। आज मैंने करीब 20 लाख किलोमीटर की यात्रा की, 20 करोड़ लोगों से मिला, तो मैंने सबको अपना माना।
जितनी भी बड़ी उम्र के बुजुर्ग हैं उनको अपने पिता समान माना, सबको अपने माँ बहन बेटियों को अपने माँ बहन बेटी की तरह माना, और सबके अंदर अपने भगवान के मूर्त रूप को देख करके मैंने उनकी सेवा की, तो यहाँ पर ये तो मैंने कुछ बातें बताई। आपको चारों तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी, एक तरफ से नहीं। कुछ लोग ना एक तरफ से लग जाते नहीं। हमारा एग्जिस्टेंस देखो, कितने पहलू हैं, कितने एस्पेक्ट्स हैं हमारे एग्जिस्टेंस के, हमारे व्यक्तित्व के, हमारे जो आइडेंटिटी है, जो हमारा एग्जिस्टेंस है, जिसको हम व्यक्तित्व कहते हैं, इसके कितने पहलू हैं। उतने पहलुओं से आपको कोशिश करनी पड़ती है तो आपको सक्सेस मिलेगी 100%। उसमें कुछ बड़ी बातें मैंने कही आपके सामने कि आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी अपनी चीज की बहुत अच्छे से। कोई दुनिया में बेस्ट से बेस्ट मार्केटिंग कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? अभी तो मेरे सपने बहुत बड़े हैं, अभी यहाँ शुरुआत हुई है, अभी कोई एंडिंग नहीं हुआ है।